Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. I bear witness that there is no God but Allah. Muslims, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala. I would like to give you good news. Our beloved Prophet said, anyone who accepts Islam, all his past sins are forgiven. And whatever good you do remains. And the bigger sin you did in the past, you go away from it, the bigger reward you get. I pray to Allah subhanahu. डॉक्टर जाकिर नाइक ओमान में मौजूद हैं और वहां पर अल्लाह के करम और फजल से डॉक्टर जाकिर नाइक के हाथों लोग धड़ाधड़ इस्लाम कबूल कर रहे हैं। ओमान में एक तकरीब के दौरान 17 खवातीन ने एक साथ इस्लाम कबूल किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इन खवातीन से क्या कहा, ये मनाजिर कैसे हैं, इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक की इन खवातीन से क्या गुफ्तगू हुई, टीम हम कदम इस सब का उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। दोस्तों, अगर एक खातून इस्लाम कबूल करती है तो इसका मतलब यह है कि एक पूरे ख़ानदान ने इस्लाम कबूल किया, क्योंकि खातून के हाथ में ख़ानदान की परवरिश होती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इन तमाम ख़वातीन को सबसे पहले ये कहा कि मेरी सभी बहनें ये बता दें कि आपके नाम क्या हैं और आपका ताल्लुक किस मुल्क से है। Would like to accept Islam, please can you mention at least your name and the country from where you come, so that we have some background about you. If you can mention the name, if you can mention your name and the country from where you come. Hello sir, good evening. I am from Philippines. My name is Rowena Selosha. Assalamu alaikum. Walaikum salam. My name is Geraldine Flores from Philippines. Assalamu alaikum. My name is Kasunika Madwandi. I am from Sri Lanka. Assalamu alaikum. I'm Claire and I'm from the Philippines. MashaAllah. Assalamu alaikum. I am Carmela Pilantes. I came from Philippines. Assalamu alaikum. I'm Jocelyn Gianna Hieronym from Philippines. MashaAllah. दोस्तों, इस्लाम कबूल करने वाले इन 17 लोगों में जहां कुछ खवातीन थी, वहीं पर एक कम उम्र बच्चा भी था जिसका ताल्लुक भारत से है। ये मनाजिर देखिए। If I'm not mistaken, there are 14 sisters. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Manveer from Mumbai, India. MashaAllah, MashaAllah. So we have 15 people who like to give the shahada, if I'm mistaken. My name is Mutabazi. From Uganda. From Uganda. MashaAllah. So we have got 14 sisters, 10 from Philippines, 4 from Sri Lanka, and 2 brothers, 1 from India, 1 from Uganda. दोस्तों, इस्लाम कबूल करने वाले इस गिरोह में खवातीन, बच्चों और जवानों समेत कुल 17 अफराद शामिल थे, जिनका ताल्लुक इंडोनेशिया, फिलिपीन, श्रीलंका, भारत और युगांडा से था। इन सभी अफराद के मुख्तसर तारुफ के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबको इस्लाम कबूल करवाने के लिए सबसे बुनियादी और अहम सवालात करना शुरू किए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि क्या आप तमाम लोग इस बात पर दिल से यकीन रखते हैं कि सिर्फ एक अल्लाह है जो इबादत के लायक है? जवाब में सब ने हाँ कहा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि क्या आपका यकीन है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए आखिरी पैगंबर और नबी हैं? जवाब में सब ने हाँ कहा। जिसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि क्या आप सबका ये यकीन है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है? जवाब में सब मर्द व ख़वातीन ने हाँ कहा। चूँकि इस्लाम कबूल करने वाले अक्सर लोगों का ताल्लुक इससे पहले ईसाईयत से था, लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह सवाल भी किया कि क्या आप सबका ये यकीन है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे गए एक पैगंबर हैं, खुदा नहीं हैं? जवाब में सब ने हाँ कहा। All can come close, that's it. Do all of you believe that there is one God? Yes. MashaAllah. Do you believe that Prophet Muhammad is a messenger of God? Yes. Do you believe that you should not worship anyone besides Allah? Yes. Do you believe that Jesus is not God? Yes. Do you believe Jesus is the messenger of God? Yes. Is anyone forcing you to accept Islam? No. Is anyone bribing you to accept Islam? No. Are you doing it out of your own free will? Yes. MashaAllah. I will just say the Shahada in Arabic and you can repeat it. It's the same what I asked you in Arabic and you can repeat it after me, inshallah.
डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे यहाँ पर यह भी सवाल किया कि ये सब कुछ आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, आपको इस्लाम कबूल करवाने के लिए किसी ने ना तो रिश्वत दी है, ना ही आप पर दबाव डाला है। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इन सबको कलिमा शहादत पढ़ाया। ये शानदार मनाजिर आप भी देखिए और अपने ईमान को ताज़ा कीजिए। अशहदु अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। I bear witness that there is no God but Allah. Muslims, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala. I would like to give you good news. Our beloved Prophet said, anyone who accepts Islam, all his past sins are forgiven. And whatever good you do remains. And the bigger sin you did in the past, you go away from it, the bigger reward you get. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may Allah subhanahu wa ta'ala. जो ही सभी लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप सबके लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो ही कोई गैर मुस्लिम दीन इस्लाम कबूल करता है तो माजी में किए गए उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, जबकि उसकी की गई नेकियां बरकरार रहती हैं। और वो अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े गुनाह से इस्लाम कबूल करने के बाद जितना दूर चला जाता है उतना ही उसको अजर मिलता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इन सब लोगों को मुखातिब करके ये भी कहा कि अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आपने इस्लाम कबूल कर लिया है तो आप दीन इस्लाम की तबलीग भी करें और अल्लाह का ये पैगाम दूसरे इंसानों तक भी पहुँचाएँ और इसका आगाज़ अपने घर से, अपने ख़ानदान से करें। Family members to the right path of Islam. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala, may He make all of you dais of Islam so that you could spread the deen more. दोस्तों, यूं डॉक्टर जाकिर नाइक के इस दौरे ओमान के दौरान ये शानदार वाक़या भी पेश आया जहां पर इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। और यकीनन डॉक्टर जाकिर नाइक के इस अमल के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद और भी लोग दीन इस्लाम की जानिब आएंगे। और जहां डॉक्टर जाकिर नाइक ने हज़ारों लोगों को दीन इस्लाम कबूल करवाने में अल्लाह की मदद से अपना किरदार अदा किया है, अल्लाह ने उनसे आज ये शानदार काम भी ले लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सब दोस्तों को ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो कि ओमान में बयान करने वाले थे और इंडिया की हुकूमत ने ऐलान किया था कि वहाँ से उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा क्योंकि वो आतंक फैलाते हैं। वहाँ पर जब वो गए तो ये उन्हें गिरफ़्तार तो ना कर सके, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें और कामयाबी और नुसरत से नवाजा है कि 17 ख़वातीन ने वहाँ पर कलमा इस्लाम पढ़ लिया है, जो कि इस्लाम के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपने वीडियो देखी है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।